Look, this is your question. You have to calculate the coefficient of the correlation and you have to obtain the line of regression. Here both the topic are combined. We have learned the coefficient of correlation. We have learned the regression analysis. So we have obtained first the coefficient of correlation. After finding the coefficient of correlation, then you have to obtain the line of regression. Line of regression is of two types. First one it is y to x, second one it is x to y. So either you find y to x or x to y, or you can also find both the line of regression. Before that, we have to find the correlation. For the correlation, coefficient of correlation. The formula is R is equal to summation xi minus x bar yi minus y bar whole upon under root summation xi minus x bar square under root summation yi minus y bar square. First you have to find the R. After finding the R, then only you will find the line of regression. For this, just take x. Here it is of y. What is the value of x? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. What is the value of y? It is 9, 8, 10, 12, 11, 13, 14, 16, and 15. First of all, you have to find xi minus x bar. For this, what is the x bar? X bar is equal to summation of x upon n. What is summation of x? Add all the numbers of 45. x. 40. इसका मतलब ये 40 आ गया. And what is the capital N? 45 है सर. 45. 45 by Yes, sir. 9. That is 5. ये हमारे पास 5 आ गया. From the xi, ये xi की नंबर है. In every xi, we have to subtract the 5. So 1 minus 5, that is minus 4. 2 minus 5, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, and 4. Then it is xi minus x bar. The square, it is 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 16, sorry, 9 and 16. Close it. Now we have to find yi minus y bar. What is y bar? Y bar equal to summation of y by n. Y को जोड़ दो आप. 108, sir. 108 8. upon 9. That is 12. 12 नमा 108 माइनस करो. 9 minus 12 minus 3. 8 minus 12 minus 4 minus 2 0 minus 1 plus 1 plus 2 plus 4 and plus 3. Make it square. yi minus y bar. The square, it is a 9, 16, 4, 0, 1, 1, 4, 16, and 9. At the last, we have to find xi minus x bar and yi minus y bar. कहाँ पर है? ये यहाँ पर है और ये गिरा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. -4 -3, that is plus 12. -3 -4, again it is a plus 12. -2 -2, it is a plus 4. -1 0, it is a 0. 0 1, it is a 0. 1 into 1, that is 1. 2 into 4, that is 8. ठीक है. 3 into 4, it is a 12. And 4 into 9, 9 के 4 into 3, again it is a 12. 3 into 4, 4 into 3. ठीक है.
add all the numbers. What you have to add? xi minus x bar, yi minus y bar का square and xi minus x bar. इनको सबको ऐड करो तो एक बार आप just add all the numbers. All the numbers का मतलब you have to add xi minus x bar square, yi minus y bar square and the product of xi minus x bar and yi minus y bar. Add all the three column such that we can use the summation of all three in the coefficient of correlation. Add कर लिया आप लोगों ने? If you have added, then I have to take the values. Values क्या है आपके पास में? The value is R is equal to what is the summation of product of xi minus x bar and yi minus y bar? सर 57 1 2 3 4 बढ़ चुका 48 तो ये हो गया और 12 25 60 57 कैसे हो गया भाई? 8 और 4 12 तो 1 2 3 4 5 12 25 60 और एक ये तो 61 हो रहा है ये तो मेरे सर नीचे का दिख रहा है नहीं। अरे तो उसको स्क्वायर कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है अपने पास में? स्क्वायर कर लो उसको। आप नहीं कर सकते स्क्वायर आप? ये कॉलम अब दिख रहा है 12 12 तो ये हो गया 3 4 और 8 और 4 12 इसका मतलब 5 12 तो ये हो गया 12 5 is 60 और 161 हो गया। फिर अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर देखो 16 4 20 और 9 1 10 30 16 4 20 और 9 1 10 30 30 और 30 60 ठीक है। फिर अंडर रूट यहाँ आ जाओ 16 4 20 9 1 10 16 4 20 9 1 10 ये गलत हो रहा है कहीं, ये गलत हो रहा है सर। ये 8 नहीं आएगा सर, 4 आएगा। कहाँ पर बेटा? सर ये लास्ट वाले में नीचे अच्छा से सर 8 लिखा ना आपने। सही कह रहे हो 2 2 से 4 है ये, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। इसलिए 4 सर आएगा 57 हो जाएगा इसका सर। इसका मतलब 4 और 4 8 1 9 48 और 9 57 अब सही है बिल्कुल 57 गुड। इसका मतलब ये हो गया 57/60 आ गया। 57/60 को डिवाइड करो तो कितना हुआ आंसर? 57/60 6 9 जा 54 9 तो ये आ गया आपके पास में 3 0 6 5 30 0.9 ठीक है। इसका मतलब ये हो गया r इज इक्वल टू 0.95 विच इज लेस देन 1। इसका मतलब ये परफेक्ट आंसर आ गया मेरे पास। तो ये जो पहला जो पार्ट दिया था वी हैव टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो मैंने निकाल के रख दिया r इज इक्वल टू 0.9। इसकी जरूरत थी ये मैंने काम कर दिया। अब आपने x i मैंने अपने x बार आपने बताया 5 और y बार आपने बताया 12। अब मैं सारा काम कर लूंगा। तो शुड आई रब दिस वन क्योंकि अब इसके बाद आई हैव टू फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन। चलो मैं आगे नाउ आई हैव टू फाइंड द लाइन Yes, ऑफ sir. रिग्रेशन। ठीक है सो आई एम रबिंग दिस वन। ये जो पार्ट है इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका अभी कोई यूज नहीं करना। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ लाइन ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन पहला पॉइंट मैंने लिया y to x। What is the equation of line of regression from y to x? Y minus y bar equal to byx और x minus का x bar। वापिस से लिखो y minus y bar equal to r summation of y upon of x और ये xi minus x bar। ओके y bar क्या निकाला आपने? 12 निकाला आपने इक्वल टू r कितना निकाला 0.5। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये देखो मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको क्या दिस इज ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं वेरिएंस। दिस इज कॉल्ड द वेरिएंस
और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट मीन्स x √60 है, तो √60 जो है अपने पास लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द समीशन ऑफ x। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो √60 जो है यहाँ पर आ जाएगा √60 और नीचे भी आ जाएगा √60। x माइनस का 5, x बार आपने 5 निकाला हुआ है। नाउ सॉल्व इट, इससे ये कैंसिल हो गया। y माइनस का 12 इक्वल टू 0.95x माइनस 5 5 है 25, 9 5 है 45 और 2 47, 4.75। इसको अपने इधर ले आओ, ये y माइनस 0.95 का x, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 4.75। तो 12 में से 4 गया 8, 8 में से ये चला गया 7.25। 7.25। हाँ वही मैंने लिखा। दिस इज इक्वल टू, दिस इज योर इक्वेशन y2x। ये आपका y2x का इक्वेशन आ गया है। या इसको उठा के उधर ले जाओ, वाली कोई एक ही बात अपने पास है। आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 0.95 of x plus 7.25. This is your line of regression from y to x. Have you understood this one? Similarly, we have to find the line of regression from x to y. I have done from y to x. Now you can calculate x to y. कुछ नहीं करना है, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पर 5 कर दोगे, यहाँ 12 हो जाएगा और ये आपके पास में सेम एज इट इज रहेगा। √60 से √60 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन सॉल्व इट, यू विल गेट द इक्वेशन। ठीक है सर थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, यस सर। लिख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ू उसको। मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए, now the question is, in a partial destroyed laboratory, on record of analysis of the correlation data, the following results only are legible. Variance of x, the variance of x is equal to 9. The regression equations are regression equation are as क्या है, 8x minus 10y plus 66 equal to 0, or x minus 80 minus 21 is equal to 0. You have to find first part, mean of x and y. Yesterday we have done this type of problem. So now first one we have to find the mean. Second one, you have to find the coefficient of correlation. And the third one, you have to find the standard deviation of y. So if the variance of y is given to you, the variance of variance of x is given to you, that is equal to 9. The regression equation are as this one. 3 part is given, which we have to find or calculate. First one, it is mean value of x and y, the coefficient of the correlation, and third is the standard deviation. So how you will find it? Find कैसे करेंगे? उसको find करने के लिए first of all, the first step is let the mean of x and y are x bar and y bar. The mean of x and y are x bar and y bar, and this point will exist in the given equation. So it is 8x bar minus 10y bar equal to minus 66. Similarly, 40x bar
minus 18y bar is equal to 214. Multiply by 5 this one. You will get 40 of x bar minus 50 of y bar equal to 6 5s are 30 and 6 5 is 30 and 3 33 है. ठीक है. Now you have to subtract this one. इन दोनों इक्वेशन को आप ये माइनस कर दो इसमें. Add, subtract this one. This is the minus, this is plus, and this is plus. It will be cancelled. 50 minus 18, that is 32 y bar equal to 544. What is y bar? Y bar equal bar. Find y bar and x bar. पहले y bar निकाल दीजिए. After finding the y bar, you will get the x bar. तो पहला पार्ट अपना क्लियर हो जाएगा. y बार 17 हो गए 17. कितना आ रहा है? 17 और 17 आ रहा है. y bar 17 आ रहा है. ठीक है. तो if y bar is equal to 17, so what is the value of x bar? What is the value of x bar? 29.5. 29.5. दोबारा ढंग से देखो. दोबारा ढंग से देखो आप. 13 सर. वेरी गुड. 13. बिल्कुल सही. परफेक्ट. नाउ एक पार्ट तो हो गया. दिस इज क्लियर. ये पार्ट तो हो गया हमारा क्लियर. अब हम बात करते हैं आर. जनरली वी हैव फाइंड द आर. इससे हम निकाल रहे थे फॉर्मूले जो दे रखे थे उससे. नाउ द डेटा ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉट गिवन टू यू. द डेटा ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉट गिवन टू यू, but we have to find the coefficient of correlation. So how you will find the coefficient of correlation? उसके लिए मैं सबसे पहले इसको रब करता हूँ. रब कर दो मैं इसे. यस सर. इस ये मैंने फिनिश हो गया. अब देखिए फर्स्ट लेट द इक्वेशन. मैंने इक्वेशन जो ना लाइन ऑफ रिग्रेशन, मैंने लाइन ऑफ रिग्रेशन जो लिया पहला लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का, इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो. वो लाइन ऑफ रिग्रेशन कौन सा लिया मैंने? y2x. तो y2x या मैं इसको x2y ले लेता हूँ. इसको x2y ले लिया. ये 8x हो गया इक्वल टू 10y माइनस 66. तो x इज इक्वल टू 10/8 of y minus 66/8. This I have find. I have taken x to y. So the coefficient of y that is equal to bxy is equal to 10/8. If you find the line of regression of the first equation by x to y, then in the next equation you will take the line of regression from y to x. So from यहाँ लिख दोगे from equation that is y2x आप लोगे. तो y2x में 18y is equal to 40x minus 214. 40x minus 214. Then y is equal to 40/18 of x minus 214/18. So here byx is equal to 40/18. ये 40/18 मैंने निकाल दिया. ठीक है. अब देखिए we know that, मैं यहाँ पर आता हूँ bxy और byx. r is equal to क्या? We know that r is equal to under root of bxy into byx under root. First one it is 10/8, next one it is 40/18. ये तो आ गया 10 into 40 that is 400. 400 का अपने पास में रूट निकाला 20 आ गया. 9 का 3 आ गया. 2 18 का मतलब 4 आ गया.
तो 20/12 आ गया, इसका मतलब 4 से 4 5 जा 4 3 जा, और आर यहाँ पे जो आपके पास में वह 1.67 समथिंग आ जाएगा आपके पास। 1.67 क्या होगा? 1.66। हाँ 1.66 तो चलते जाओ। तो आप देखिए, ये जो मैंने निकाला हुआ है ये टोटली गलत हो गया। अब मैं इसको ऊपर यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख दो पॉइंट, सिंस आर विल नेवर बी ग्रेटर देन 1, आर कभी विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। आपको मैंने पहले बताया था आर विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to +1, इसके बीच में आएगा आपका आंसर, लेकिन आपने तो निकाल दिया 1.67, ये फॉल्स हो गया। देन व्हाट यू विल डू इट, सो वेयर यू हैव टेकन द लाइन ऑफ रिग्रेशन x to y, जहां पर आपने x से y लिया था उसको चेंज करके y to x कर दो। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पैरेलल में मैं यहाँ पर y to x बदल देता हूँ मैं। तो y to x बदलने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर byx इक्वल टू 8/10 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में मैं इसको x to y ले लेता हूँ, तो ये bxy जो है वो आपके पास 18/40 आ जाएगा आपके पास। इफ इट इज दिस वन देन r विल बी, तब r आपके पास में क्या होगा, then r is equal to under root of bxy into byx, this is equal to एक आ जाएगा 8/10 और एक आ जाएगा 18/40, which is equal to 3/5, that is 0.6, r is equal to 0.6। ये आपका आंसर, क्योंकि हमारा -1 से +1 के बीच में था, वो हमारा आंसर आ भी गया। सो हियर वी कैन से दैट r is equal to 0.6। ये परफेक्ट अपना पास काम हो गया, r is equal to 0.6, इट इज योर परफेक्ट आंसर। तो दो चीज हो गया, मीन आपने निकाल दिया y is equal to 70, x is equal to 30, फिर आपने निकाला r पहले आपने निकाला 1.16, जो कि आप क्योंकि आप यू डोंट हैव द आइडिया, जो इन द फर्स्ट इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन x to y और y to x, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अपने अंदाज से नहीं, जो आ रहा है उसको लाने दो। आप मान लो पहले में आप y to x लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट भी होंगे जो आप एक y to x की जगह पर x to y ले लेगा, तो x to y लेगा, अगर इसको x to y लेगा तो नेक्स्ट इक्वेशन को y to x लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि r is equal to the product of the slope of bxy and byx, उसका रूट होता है r आपके पास में। तो ऐसा नहीं है दोनों में सेम निकालोगे, सेम नहीं निकालना है, इसमें एक में xy निकाला, दूसरे में yx निकालना होगा। अब इससे हमने प्रोडक्ट करके देखा r, अरे यार इट इज ग्रेटर देन 1, और इसका मतलब गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है इसका मतलब चेंज कर दो, जिसको आपने इक्वेशन y to x लिया हुआ है उसको x to y कर दो, और जिसको x to y लिया उसको y to x कर दो, करते मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो दो पार्ट मेरा क्लियर हो गया। अब तीसरा पार्ट में लूंगा, मैं तीसरा पार्ट में क्या लूंगा वो देखिए। थर्ड वन उसने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना था, y। थर्ड पार्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपसे पूछा हुआ है y को निकालने के लिए। तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y कैसे आप निकालेंगे आप, ठीक है, y आप कैसे निकालेंगे। तो गिवन क्या था, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9, वेरिएंस का सिंबल क्या है, सिग्मा स्क्वायर x, इसका मतलब सिग्मा x कितना हो गया, 3 आ गया। ये तो मैंने निकाल लिया, मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना सिग्मा y, कैसे निकालूंगा, तो वी नो दैट byx यस एग्जैक्टली byx क्या होता है, r r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। byx क्या निकाला 8/10, ये तो आपके पास 8/10 आ गया आपके पास,
इट इज 8/10। आर कितना निकाला 0.6। सिग्मा वाई मुझे मालूम नहीं है, सिग्मा वाई मुझे मालूम नहीं है, अपॉन सिग्मा एक्स आ गया 3। क्रॉस कर दो, 8 इंटू का 3 अपॉन 10 इंटू का 0.6, दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई। इसका मतलब ये से ये खत्म, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4 या 16। 16 सॉरी। ठीक है, तो सिग्मा वाई आपके पास में 16 आपके पास में, इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ गया। लेकिन 10 एक मिनट, 10 इंटू 0.6 दैट इज 6 और 6 वो हो, ठीक है 4 सही कह रहा है। ये 1 ये 4, ये आपके पास 4 आ गया। So standard deviation of y is equal to 4, standard deviation of x is equal to 3, मीन आपने निकाल लिया, वेरियंस आपने निकाल लिया, एंड वो जो था आपके पास में r आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो। ये सब चीज आपके पास मालूम चल गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप फिर अगेन उसके अंदर में आप फाइंड करके मुझे दिखाइए। सर जैसे अगर आर फॉल्स आए तो उसको काट के दोबारा से सही करना है या नहीं फिर नहीं नहीं, काटना नहीं है। अरे जो तुमने किया वो सही है बिल्कुल, लेकिन वहां एक स्टेटमेंट आप लिखोगे, जो आर विल नेवर लाई बिटवीन, इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन 1, ये कभी नहीं होगा आपके पास में। सो यू विल चेंज द इक्वेशन। ओके आप सर। लाइन ऑफ रिग्रेशन आपको क्रॉस नहीं करना, उसको काटना नहीं, गलत नहीं है, उस पर आप जवाब लिखोगे। आप ये जो इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1, so we will change the line of regression यस which सर। we have found from x to y, that will change to y to x, जिसको आपने y to x निकाला वो x to y हो जाएगा। ये तो दोनों करके दिखाना पड़ता है, इसलिए इसको काटोगे नहीं। ठीक है, अब एक यस सर। क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो मुझे आप करके दिखाइए आप मुझे। एक सर अगर सर दोनों और जीरो और -1 और 1 के बीच में आए तो सर पॉसिबल है? नहीं होगा, दोनों बार में ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब उस क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक बार में तो हो सकता है, लेकिन सेकंड टाइम आप चाहोगे हो जाना, वो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप सिंपल सी बात है, आप क्या होगा, आपके पास अगर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मान लो ये 1/2, पहले आपके 2/1 आया, इसका उल्टा करोगे तो 1/2 ही तो आएगा, ये तो यस गलत सर। कैसे हो जाएगा ये। आप सोचोगे जो दोनों बार उल्टा करने पर ये कभी पॉसिबल है क्या, कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो रिवर्स करने के बाद में भी हमारा आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। करके देख लो आप, कोई भी नंबर ले लो आप, किसी भी नंबर को आप ले लो फ्रैक्शन में, जिसका 1 से 1 ग्रेटर आ जाए, उस 1 फ्रैक्शन ही को आ जाए उल्टा सर। कर वो, हाँ 1 हो तो 1। 1, अरे तो 1 तो फिर तो एग्जैक्ट तो हो ही गया, तो 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 में क्या है, 1 को हम परफेक्ट कोरिलेशन नहीं कहते हैं, 1 में तो यस कोई सर। दिक्कत नहीं। मैंने कहा बिटवीन -1 टू +1, तो -1 टू +1 का मतलब हो गया, मैं r इज इक्वल टू -1 भी तो आंसर है ही मेरा, उसको परफेक्ट नेगेटिव कहूंगा। जब +1 आएगा उसको परफेक्ट पॉजिटिव कहूंगा मैं। 1 तो 1 को छोड़ दो, 1 को के बाद में जितने भी आपके पास नंबर आते हैं वो गलत होगा, लेकिन जिसको रिवर्स कर दोगे ना तब सही निकल जाएगा आपके पास में। ये क्वेश्चन है,
सर ऊपर के डिजिट्स नहीं दिख रही। रिपीट कर लो आप, देख लो x के अंदर में 45, 55, 56, 58, 60, 65, 68, 70, 75, 80 and 85. In the column the y, it is 56, 50, 48, 60, 62, 64, 65, 70, 74, 82 and 90. 56, 50, 48, 60, 62, 64, 65, 70, 74, 82 और 90. These are the numbers are given to you. First you have to find the correlation coefficient, and then after finding the R, then you have to find the line of regression. You will find both the line of regression. आप दोनों ही निकालिए आप फर्स्ट, इसको करके मुझे आंसर चाहिए मुझे. सर सेकंड टर्म क्या है एक्स में? सेकंड का क्या मतलब? एक्स में सेकंड टर्म, एक्स में सेकंड टर्म 55 है. 45, 55, 56, 58, 60, 65, 68, 70, 75, 80 and 85. Be fast.
कुछ निकला आंसर आप लोगों का? हेलो, सर R is equals to 0.9. सर माइक म्यूट है आपका। सर माइक म्यूट आपका। हाँ मैंने कहा 9 के बाद क्या आ रहा है? सर 0.9186. 9186, तो 9186 को कर दो 0.92, दैट इज योर परफेक्ट आंसर। 0.918 जो है यू कैन राइट 0.92, यस सर। ठीक है। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ यू फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन, हाउ विल फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन? तो लाइन ऑफ रिग्रेशन के लिए यू विल हैव द एक्स बार आपने निकाला होगा, वाई बार आपने निकाला होगा, ठीक है। आर को फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, समीशन ऑफ ये वाई आई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट आपने किया होगा समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यहाँ पर समीशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एडिशन, इसको सिग्मा एक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिग्मा एक्स, the variance of the x or the standard deviation of the x। ये वैल्यू है, इसको पूरे को रख दो आप वहां पर, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। एक इक्वेशन में बता दो, उससे काम निकल जाएगा। ये टॉपिक अपना फिनिश हो गया। अब यू कैन जितना भी चीजें हैं उसको आप से ट्राई कर सकते हो आप। हाँ बेटा, बोलो। टेल मी योर आंसर। एक मिनट, क्या है आंसर? y2x का बोलो आप।
y2x का आंसर बताओ आप। चलो दोनों देख लेंगे। निकला किसी का आंसर कि नहीं? हेलो, x2y और y2x इन दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन में से जो भी आपके पास आ जाए वो बता दो, कोई भी एक जना। y2x and x2y। सर 0.22। एक मिनट, 0.22 इसमें आप y2x बोल रहे हो या x2y बोलता आप बता रहे हो? ऐसे नहीं निकलेगा 0.22। आइदर यू हैव टू टेल y2x और x2y, ये होगा इसमें से। ना गलत है। खैर इसको आप ट्राई कर लेना और मुझे बता देना क्या एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है? सर y2x लेंगे तो इक्वेशन हमारी आ रही है 0.92x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5.2। देखो y2x बता रहे हो ना तुम, तो y यस इज सर। इक्वल तो y इज इक्वल टू 0.9, क्या बताया तुमने? 0.9। सर 0.92x हाँ, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5.2। नहीं नहीं ये नहीं है एग्जैक्ट। अगर y2x अगर चलते हैं तो y इक्वल टू 0.99x है प्लस 1.02 है। वो जो बुक में जो आंसर आ रहा है वो y इज इक्वल टू 0.99x प्लस 1.02। ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लेना, करेक्ट कर लेना आप लोग। यस सर।
ठीक है, ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर।